Jeddah, we are very much Yes. near to this Makkah, which is just before Makkah. This is the airport which we have to reach to Makkah. So we are practicing Krishna here, and 3 initiated devotees are here. Myself, my wife Shubhangi Sugopi Devidasi Mataji, and Radha Kirti Devidasi Mataji, which happens to your god sister Prabhu. Yes. So, and for the last 1.5 year, we are into this Bhakti Vriksha, running Bhakti Vriksha here. Every Friday we have Bhagavad Gita classes and continuing Bhakti for the pleasure of Guru and Gauranga Prabhu. So Srila Prabhupada mercy that we could start preaching classes here, and it's going on regularly, Prabhu. So Very nice. Around 40 members attend every week, and now because summer holidays have started, so devotees are on vacation, and some have joined online, Prabhu. So you'll have to bless us all, Prabhu. And for the benefit of everybody, I will just read out your introduction to all, Prabhu, with your permission. Hare Krishna. Hare. So Prashant Mukund Prabhu is an international spiritual guide, senior counselor at ISKCON. Runs he's a Brahminical initiated disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. And his professional education, he has done BSc from Industrial Chemistry in New Delhi University, and then MBA from Symbiosis. And he also holds a diploma in Pharmaceutical College of Management from London. And he has worked with the media industry and big multinational pharmaceutical research companies, and associated with ISKCON for the last 18 years. He's a Vedic Bhakti Shastri from ISKCON, that is MIHA, we call it the Mayapur Institute of Higher Education. And he has worked as a vice president for Annamrit, ISKCON Food Relief Foundation. He is a regular teaching faculty at ISKCON Bhagavad Mahavidyalaya, Vedaversity, India and North Atlanta. And he has been awarded 2 times the Spiritual Icon of Asia and guest speaker. Also recently, Prabhuji has visited Dubai to receive the award of Best Spiritual Icon of UAE. He has been recognized by University of Hyderabad, ISOL Foundation 2024 for his mission for speaking about ancient knowledge of Srimad Bhagavatam around the globe. He has been recognized by Gallant Warriors Award 2024 for the service in protection and spreading of Dharma and Vedic culture. He is involved into counseling as spiritual guide to many families at India, Florida, Philadelphia, Perth, Dubai, Muscat, Oman, Denver, Karachi, London, and henceforth, I think so, Prabhuji will also be a spiritual guide for us at Sanatan Dham Jeddah. He very same. He has done his various seminars and life management, stress management, time management to corporate, schools, societies, and he continues to inspire and guide individuals through his teachings, lectures, and personal engagement, making significant spiritual contribution to communities around the globe. So we welcome Prabhuji one time by saying Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So thank you, Premay Gopesh Prabhu, for introducing your team members at Makkah, Jeddah, Sanatan Dham. So सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि सब एकत्रित होकर के आज जगन्नाथ जी की कथा को श्रवण करेंगे. तो हम हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलें प्रभु जी? हिंदी में चलेगा प्रभु, हिंदी में चलेगा. Okay. Everyone is speaking, right? Yes, प्रभु, चलेगा. Okay. Yeah, I can speak in English as well. No, it's okay, bro. Maximum are from Hindi. We have devotees here from India, Pakistan, and Bangladesh also. So, ठीक है. Hare Krishna. Okay, सब लोग, we will chant some Jagannath mantra and then we'll start. Just hold, close your hands. We can chant the mantra. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नीलांचल निवासाय
नित्यः परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभयं श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जगन्नाथ स्नान यात्रा आप लोगों ने अभी सेलिब्रेट किया और अभी जगन्नाथ यात्रा आप करने वाले हैं। तो आप सब सनातन धाम भक्त वृंद को मेरा प्रणाम। अपने गुरुजनों वैष्णव जन आचार्य शिल प्रभुपाद की आज्ञा हेतु आज जगन्नाथ कथा की चर्चा करेंगे। जगन्नाथ नाम से ही प्रसिद्ध है, जगत के नाथ जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ का एक नाम है श्रृंगार प्रेमी ठाकुर। भगवान जगन्नाथ को कहते हैं श्रृंगार प्रेमी। भगवान जगन्नाथ को अपना श्रृंगार कराना बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए भगवान को साल भर कई प्रकार के वेश दिलाए जाते हैं, जैसे बड़ा श्रृंगार वेश, सोना वेश, पद्म वेश, है ना, अवकाश वेश, गज वेश स्नान यात्रा में विशेष पहनाते हैं। तो कहते हैं भगवान के जब विशेष वेश लगते हैं, उनके दर्शन करने मात्र से तव दर्शनात् मुक्ति, किसी भी व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है भगवान के केवल दर्शन करने मात्र से। इसलिए स्कंद पुराण में कहा है, ऐसे जो भगवान जगन्नाथ है, भगवान को अनेकों अनेकों स्तुतियों से स्कंद पुराण में उनका स्तुति गान किया गया, उनकी प्रार्थनाएं गाई गई हैं। नमस्ते कमलाकांतः नमस्ते कमलानन नमः कमलपत्राक्ष त्राहि मां पुरुषोत्तमम। भगवान जगन्नाथ के कई नाम हैं, श्रृंगार प्रेमी ठाकुर, जगन्नाथ, कृष्ण और एक नाम है पुरुषोत्तम। इसलिए जगन्नाथपुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहते हैं। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में जो उत्तम है, द बेस्ट अमंग द मैन, पुरुषोत्तम। तो नमस्ते कमलाकांत। कमलाकांत क्यों? क्योंकि उनका जो शरीर है वो कमलाकांत है, कमल के समान सदृश है। हर चीज को कमल से कंपेयर किया गया भगवान की। नमस्ते कमल आननः, भगवान के आंखों का रंग भी कमल जैसा है। नमः कमल पत्राक्षः, उनकी आंखों का साइज भी कमल पत्ते जैसा है। त्राहि माम पुरुषोत्तम, ऐसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम हे जगन्नाथ हमारी रक्षा कीजिए। कहते हैं स्कंद पुराण में, अन्ते ते वर्णयाशामि दिव्यम मूर्ति जगतपते या चर्म चक्षु दृष्ट्वा जायते मुक्ति भाजनम। अगर कोई व्यक्ति भगवान की दिव्य मूर्ति को, डिविनिटी को भी नहीं जानता है, बहुत सारे लोग हैं विश्व में जो भगवान जगन्नाथ की डिविनिटी यानी उनकी दिव्यता को नहीं जानते हैं। दिव्यम मूर्ति जगतपते है या चर्म चक्षु दृष्टवा, चर्म चक्षु यानी ये जो आंखें, हमें भगवान ने चमड़े की आंखें यानी ये जो स्किन लगाया है, चमड़ की आंखें, या चर्म चक्षु दृष्टवा, अगर इससे भी एक बार भगवान को देख लिया, जायते मुक्ति भाजनम, वो व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी हो जाता है केवल एक बार दर्शन करने मात्र से। तो ऐसे जगन्नाथ, अभी उनका 2 दिन पहले स्नान पूर्णिमा बनाया गया। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को राजा इंद्रदुम्न को समुद्र के किनारे तैरते हुए एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा मिला और उसको उन्होंने भगवान नीलमाधव की आज्ञा से कारीगरों के माध्यम से बनाने का प्रयास किया और 21 दिन की उन्होंने मांगा था, मुझे 21 दिन दे दीजिए बनाने के लिए, और 15 दिन बाद ही उन्होंने, राजा इंद्रदुम्न ने दरवाजा खोल दिया। भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का विग्रह पूर्ण रूप से तैयार नहीं था। राजा इंद्रदुम्न को बड़ी ग्लानि हुई, ये मैंने क्या किया, इतनी जल्दी मैंने दरवाजा खोल दिया। वो अनंत ब्राह्मण जो कि विश्वकर्मा थे, जो भगवान जगन्नाथ के विग्रह बनाने आए थे, वो 15 दिन बाद अदृश्य हो गए। ये क्या हुआ? तो भगवान जगन्नाथ ने कहा, चिंता मत करो इंद्रदुम्न, चिंता की बात नहीं है। ये मेरा दिव्य स्वरूप है जो कलयुग में लोगों का उद्धार करने के लिए आया है। ये मेरा दिव्य स्वरूप है। भगवान ने बताया, ये मेरा जो लकड़ी का टुकड़ा तुम्हें तैरता हुआ मिला, ये तैरता हुआ क्यों मिला? मैंने तुम्हें आदेश क्यों नहीं दिया कि किसी पेड़ के तने को काट करके बनाओ? क्योंकि मैं राधा रानी के प्रेम में, जी सागर है उड़ीसा का, पुरी का,
ये राधा रानी का प्रेम है और इसमें मैं तैरता रहता हूँ। इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी की आंखें रेड कलर की होती है साइड से, उसमें राधा रानी का प्रेम भरा हुआ है। रोने से द्वारकाधीश कृष्ण इतना रोते हैं राधा रानी के विरह में, वृंदावन को छोड़े हुए 100 वर्ष बीत गए, मैं द्वारका का राजा बन गया। रोते 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 उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। तो भगवान जगन्नाथ ने इंद्रदुम्न को कहा, मैं राधा विरह ठाकुर हूँ, इसलिए तुम्हें राधा रस सागर पे तैरता हुआ मिला हूँ। 15 दिन का जो ये काल है, ये हर वर्ष अनवसर काल कहलाएगा और इन 15 दिनों के लिए मैं अकेला लक्ष्मी के साथ अपना जीवन जीऊंगा। बाकी समय संसार का, 15 दिन मेरे लक्ष्मी जी के। तो जगन्नाथ जी जब भावयुक्त हो जाते हैं, उनको वृंदावन का स्मरण आता है। तो उड़ीसा में 2 मंदिर हैं, एक श्री मंदिर, एक गुंडीचा मंदिर। श्री मंदिर है जिसमें भगवान जगन्नाथ विराजमान है, जिसे टीवी में फोटो में देखा जा सकता है। उसको द्वारकाधीश का भाव दिया गया, ऐश्वर्य का भाव दिया गया है। और दूसरी ओर जो गुंडीचा मंदिर है, उसमें वृंदावन का भाव दिया गया है। एक ही रोड पर, जिसे ग्रैंड रोड कहते हैं, जिस पर रथ यात्रा निकलती है, एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाने में इतना भाव आता है। भगवान जगन्नाथ ने राजा को कहा, हर वर्ष स्नान पूर्णिमा बनाई जाएगी, 108 चांदी के कलशों से मेरा अभिषेक होगा। तो कुएं हैं गंगा और यमुना नाम से, उन कुओं से पवित्र जल ला करके मेरे स्नान कराया जाएगा। तो भगवान की स्नान वेदी पर उनको आरूढ़ करके बहुत सुंदर स्नान यात्रा होती है और स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार आ जाता है। 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी अनवसर काल में जाते हैं, किसी को दर्शन नहीं देते और 15 दिन औषधि, जैसे बुखार जब होता है तो काढ़ा पीते हैं, दवाइयां पीते हैं, औषधि लेते हैं। 15 दिन के लिए औषधि काढ़ा लेंगे भगवान जगन्नाथ। तो भगवान के 2 मुख्य पार्षद हुए, एक विद्यापति और एक विश्वावसु। विद्यापति ब्राह्मण थे और विश्वावसु सबर जाति के थे, यानी जो जंगली होते हैं, आदिवासी होते हैं, सबर जाति जिसे शबरी आती है। सबर जाति के लोगों को दैत्यापति कहते हैं। दैत्यापति लोग केवल 15 दिन की सेवा करेंगे और ब्राह्मण लोग बाकी दिन सेवा करेंगे। भगवान जगन्नाथ ने, जब द्वारका में भगवान कृष्ण थे, तो आचार्य बताते हैं ये जो जगन्नाथ का भाव है, ये भगवान कृष्ण अपने वृंदावन को स्मरण कर रहे हैं और राधा 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 नाम बोलते बोलते भाव विभोर होकर के उनकी आंखों नशा युक्त हो जाती है राधा राम से और वो जमीन पर बेहोश होकर के गिर जाते हैं। तब उनके सारथी दारो, सत्यायकी और अन्य उद्धव आदि उनको रस्सियों में बांधकर खींचते हैं कि हे कृष्ण, क्या हो गया, तुम्हें वृंदावन का इतना स्मरण आ रहा है, चलिए तुम्हें वृंदावन ले चलते हैं, तुम्हारे रथ पर ले जाएंगे तुमको बिठा करके। तो सुभद्रा महारानी सोचती है, जब हम वृंदावन जाएंगे और वहां तो राधा रानी है, राधा रानी जब सुनेंगी कृष्ण का ये हाल है, तो राधा रानी का भी हाल बुरा होगा, वो भी मूर्छित हो जाएंगी। इसलिए मैं कन्या हूं, मैं पहले जाऊंगी और जाकर के मैं समझाऊंगी कि देखो पीछे कृष्ण आने वाले हैं, वो तुम्हारे विरह में पागल हो चुके हैं, इसलिए हे राधे, आप सकुशल रूप से श्री कृष्ण को स्वीकार करें, उनका वेलकम करें। तो बलराव जी कहते हैं, रुको 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 सुभद्रा, तुम बहन हो, तुम अकेली जाओगी, ये तो ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और आगे आगे चलकर कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य करता हुआ व्यक्ति आएगा, उससे मैं युद्ध करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं बड़ा भाई हूं। इसलिए आज भी सबसे पहला रथ जो निकलता है वो बलदाऊ जी का निकलता है, उसके पीछे रथ सुभद्रा जी का निकलता है और उसके पीछे जगन्नाथ जी का। तीनों लाइन में चलते हैं, पहले दाऊ बलराम, फिर सुभद्रा, उसके पीछे जगन्नाथ। राजा इंद्रदुम्न को भगवान कृष्ण ने कहा, जब भी मैं वृंदावन जाऊं, वृंदावन यानी गुंडीचा, गुंडीचा मंदिर को सुंदरांचल कहते हैं और श्री मंदिर को नीलांचल कहते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल द्वितीया को ये यात्रा होनी चाहिए। कई सारे नाम हैं, गुंडीचा यात्रा, महावेदी यात्रा, पतित पावन यात्रा, घोष यात्रा, जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा, कई नाम से इस यात्रा को जाना जाता है। पतित पावन यात्रा, घोष यात्रा, गुंडीचा यात्रा, महावेदी यात्रा, रथ यात्रा,
जगन्नाथ यात्रा, ये सब यात्राएं की जाती हैं बड़े भाव से। एक ग्रंथ आता है जगन्नाथपुरी में, उसका नाम है मंदाल पंचका। उसी से सारी चीजें निश्चित होती हैं कि कब ये यात्रा होगी, कौन से महीने में होगी, कितने भक्त आएंगे। कहते हैं पहले इन दोनों मंदिरों के बीच एक नदी बहती थी, मालिनी नाम की नदी थी। और आज भी वहां पर एक चौक है, बलगंडी चौक। तो उससे पहले बलगंडी नदी या फिर मालिनी नदी कहते थे। तो आज अभी हम देखते हैं टीवी पे कि पुरी में 3 रथ निकलते हैं, 3 रथ जाते हैं और 3 रथ वापिस आते हैं। लेकिन सतयुग के काल में 6 रथ होते थे। पहले 3 रथ मालिनी नदी तक जाते थे, बलगंडी चौक आता था, फिर वहां से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को नाव पे आरोहण करते थे। फिर नाव पूरी नदी को क्रॉस करती थी और फिर नाव से निकालकर 3 विग्रह उधर जाते थे, उधर 3 रथ नए होते थे और फिर उन 3 रथों से यात्रा पूर्ण होती थी और फिर रिटर्न में भी ऐसे ही नाव के माध्यम से लाया जाता था। तो ये सतयुग के काल में होता था। लेकिन अभी 6 रथ बदलकर 3 हो गए और शहरों में तो एक ही रथ पर तीनों को बिठा देते हैं, है ना? लेकिन भगवान के जगन्नाथ का नाम ही है विशाल। अंग्रेज लोग जब भारत आए, जैसे मुस्लिम्स के लिए मक्का मदीना अपने जीवन में एक बार हज यात्रा करना जरूरी है तो वो मुसलमान होता है। लेकिन एक सनातन धर्मी के लिए, जो सनातनी है, जो हिंदू है, जो वैष्णव है, उसके लिए जीवन में एक बार कम से कम भगवान जगन्नाथ जी के धाम जाना आवश्यक है। रथ यात्रा में जाए या स्नान यात्रा में जाए, जब भी भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन कर, जीवन में एक बार तो करना ही चाहिए। तभी उसका सनातन धर्म में जन्म लेना पूर्ण होता है। कहते हैं जब भगवान रथ पर बैठते हैं तो बहुत तैयारियां की जाती हैं और कहते हैं रथ अस्थितम व्रजंतम तम महावेदी महोत्सवे ये पश्यन्ति मुदा भक्त्या वास्तेषाम हरिर्पदे। रथ अस्थितम, जब रथ पर भगवान जगन्नाथ कृष्ण बैठ जाते हैं, व्रजंतम तमह, और अपने व्रज की ओर चलते हैं। इस महोत्सव का नाम है महावेदी महोत्सव। महावेदी क्यों? भगवान को वेदी पर बिठाते हैं, जो ऑल्टर होता है उसको वेदी कहते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ की वेदी को महावेदी कहते हैं। तो महावेदी पर तैयार होके भगवान को खींचते हुए लाते रस्सियों से और फिर लाकर रथ पर बिठाते हैं। तो इस उत्सव का नाम महावेदी उत्सव भी है, रथ यात्रा का नाम। इस उत्सव में रथ अस्थितम व्रजंतम तम महावेदी महोत्सवे ये पश्यन्ति मुदा भक्त्या वस्तेशम हरेर पदे। अगर किसी ने भक्ति भाव से एक बार भी भगवान जगन्नाथ को रथ पर बैठा देख लिया, उसके हृदय में पूर्ण रूपेण भक्ति का बहुत बड़ा एक रिजर्वियर, एक बहुत बड़ा भंडार खुल जाएगा उसके हृदय के अंदर। भगवान जगन्नाथ ने जब अपना प्राकट्य किया तो राजा इंद्रद्युम्न, जिनकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ आए थे, उन्होंने जगन्नाथ जी से 3 वर मांगे। पहला वर मांगा, मेरे घर कोई संतान ना हो, कोई बच्चा ना हो। गुंडीचा और इंद्रद्युम्न दोनों पति पत्नी ने क्या मांगा? हमारे घर कोई संतान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संतान होगी तो वो कहेगी ये हमारे हैं, ये मंदिर हमारा है। लेकिन ये मंदिर हमारा नहीं है, ये मंदिर सारे समाज का है, सारे सनातन धर्मियों का है। जैसे मक्का मदीना में हिंदुओं को आना अलाउड नहीं है, ऐसे ही जगन्नाथपुरी के अंदर किसी मुस्लिम या क्रिश्चियन या फॉरेन को आना अलाउड नहीं है। सनातन धर्मी जो गोत्र जानते हैं उन्हीं लोगों को प्रवेश होता है। चीटिंग करके अगर आप घुस भी गए तो वहां के पंडित बड़े होशियार होते, पकड़ लेते हैं और फिर वापस आपको दर्शन से खींचकर बाहर ले आएंगे। इस्कॉन के डिवोटीज भी जो फॉरेन बॉडीज हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, उनको दर्शन मिलते नहीं। तो जो लोग भगवान का दर्शन अंदर नहीं कर सकते, उन्हीं लोगों को दर्शन देने के लिए भगवान जगन्नाथ रोड पर आते हैं, ताकि सारे संसार के जीव, मुस्लिम, इस्लामिक, ईसाई, सिख, कोई भी व्यक्ति भगवान का दर्शन कर सकता है। तो राजा इंद्र ने मांगा था मेरे घर कोई संतान ना हो। दूसरा मांगा था सारा दिन जगन्नाथ जी आप खाते रहे, आपके हाथ कभी सूखे नहीं। इसलिए जगन्नाथपुरी में आनंद बाजार है, इतना आनंद होता है, इतना भोजन होता है, इतना भोजन होता है, कभी कोई भूखा नहीं सोया।
जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ, पूरे जगत हाथ पसारता है। सुंदर भात चावल प्रसाद भगवान का निर्माल्य खाया जाता है। और तीसरा उन्होंने मांगा था, भगवान आप केवल 3 घंटे ही सोइए, ज्यादा नहीं सोना है। तो 3 इच्छाएं पूरी करी। भगवान आज 12, 1, 2 बजे तक भगवान का दर्शन होता है। महाश्रृंगार वेश लगता है रात को 1:30 बजे, पद्म वेश लगता है रात को 2 बजे, चंदन यात्रा होती है रात को 12 बजे और सुबह भगवान फिर 5, साढ़े 5 बजे फिर आ जाते हैं बाहर। भगवान सोते नहीं है। दूसरा, भगवान हर टाइम खाते रहते हैं। 8 बार भगवान को भोग लगेगा और सारा भोग जगन्नाथ जी का आनंद बाजार में सारी दुनिया के लिए रहेगा। और भगवान के कोई संतान, इंद्रदेव के कोई संतान नहीं है। तो एक बार राठी गुंडीचा ने कहा, हे जगन्नाथ, राजा ने इंद्रदेव ने मांग लिया हमारे कोई संतान ना हो, पर अगर हमारे संतान नहीं होगी तो फिर हमारा पिंडदान कौन करेगा? क्योंकि पितृ की संतुष्टि के लिए पुत्र को पैदा किया जाता है। पुत्र अपने माता पिता के लिए अंतिम संस्कार पिंडदान करता है। पू नामक नरकः त्रायते इति पुत्रः। पू नामक नरक से अपने माता पिता को तारता है, पिंडदान, संस्कार, श्राद्ध कर्म करता है। लेकिन हमारे तो कोई बच्चा नहीं है। गुंडीचा ने कहा, हे जगन्नाथ, हमारा पिंडदान कौन करेगा? जगन्नाथ जी हंसने लगे और जगन्नाथ ने कहा, हे गुंडीचा माँ, चिंता क्यों करती हो? आप दोनों ने मेरी इतनी सेवा करी है, मुझे संसार में प्रकट किया है। आने वाले काल कलयुग में जब भी श्राद्ध कर्म पितृपक्ष आएगा तो मैं ही आपका पिंडदान करूंगा। आज भी मदन मोहन नामक मूर्ति रोज जब भी पितृपक्ष आता है, वो जल तर्पण करने के लिए, पिंड दान करने के लिए, श्राद्ध कर्म करने के लिए भगवान जगन्नाथ स्वयं गुंडीचा मंदिर जाते हैं, अपनी माँ गुंडीचा का श्राद्ध करने के लिए, इंद्रदुम्न का श्राद्ध करने के लिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि भगवान अपनी माँ गुंडीचा से मिलने के लिए आतुर होते हैं। इस यात्रा में भी गुंडीचा मंदिर जाते हैं। 3 रथ, बड़े विशालकाय रथ बनाए जाते हैं। इन तीनों रथों को वर्णन किया गया है शास्त्र में, स्कंद पुराण में। कहते हैं अलग अलग रथ के अलग अलग नाम है। जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष। और ये जो है नंदी घोष, इसका रंग कैसा होता है? लाल, पीला। इसके ऊपर चक्र लगा होता है और गरुड़ बने होते हैं। इसके अंदर 16 पहिए होते हैं। नंदी घोष के अंदर एक सारथी बिठाया जाता है जिसका नाम है दारुक, भगवान कृष्ण का सारथी। रक्षक के रूप में एक देवता आरूढ़ किए जाते हैं जो भगवान की रक्षा करेंगे। वैसे तो भगवान की रक्षा की किसी को आवश्यकता नहीं है, भगवान सबके रक्षक हैं। परंतु यहाँ पर वात्सल्य भाव में जितने भी जगन्नाथपुरी के भक्त हैं, वो नरसिंह भगवान को आरूढ़ करते हैं कि भगवान कृष्ण की वृंदावन यात्रा में, रथ यात्रा में नरसिंह उनकी रक्षा करेंगे। केशव धृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे। 4 घोड़े लगाए जाते हैं। आजकल तो लकड़ी के घोड़े लगते हैं, पहले असली घोड़े लगते थे। उन घोड़ों के नाम सूक्ष्मा, रेचिका, मोचिका, अमृता। ये 4 घोड़े लगते हैं, सफेद रंग के, व्हाइट, श्वेत। फिर सुभद्रा महारानी का रथ तैयार होता है, उसका नाम है देवदलन। उसमें 12 पहिए होते हैं, पद्म चिन्ह होते, कमल के चिन्ह बने होते पूरे पूरे रथ के ऊपर। उसका कलर लाल और काला होता है। उसमें सारथी रूप में सुभद्रा के पति भगवान कृष्ण के भक्त अर्जुन, महाभारत वाले, आरूढ़ होते हैं, बैठते हैं। और उसमें रक्षक के रूप में वन दुर्गा नामक एक देवी है, वन दुर्गा, उनको आरूढ़ किया जाता है। तो सुभद्रा महारानी योग माया है और वन दुर्गा महामाया है। जबकि योग माया ओरिजिनल पोटेंसी है भगवान की, और इंटरनल पोटेंसी एंड एक्सटर्नल पोटेंसी है वन दुर्गा। तो वन दुर्गा यहाँ पर रक्षक के रूप में लगाई जाती है। 4 घोड़े लगते हैं पीले रंग के। अधर्म, अज्ञान, उपार्जितः, ज्योतिनः। इस प्रकार से ये 4 घोड़े सुभद्रा के रथ को खींचते हैं। तीसरा रथ बलदेव जी का होता है। बलदेव जी के रथ पर नाम तालध्वज, लाल और हरे रंग का होता है। 14 पहिए होते हैं लकड़ी के, एक भी लोहा इस्तेमाल नहीं होता पूरे रथ में। ताल पत्र के चिन्ह बने होते हैं, ताल, क्योंकि भगवान जगन्नाथ ताल वन में धेनुकासुर का वध किए थे।
तो इसलिए ताल चिन्ह बने होते हैं। सारथी के रूप में सुदुम्न नाम का सारथी है बलराम जी के रथ का, सुदुम्न। कृष्ण का है दारुक और बलराम का है सुदुम्न। रक्षक के रूप में अनंत शेष, क्योंकि बलराम जी का एक्सपेंशन है शेषनाग, तो अनंत शेष आरूढ़ होते हैं। और घोड़े के रंग काले रंग के 4 घोड़े होते हैं, स्थिरा, सिद्धा, धृति, स्थिति, ऐसे 4 घोड़े बलराम जी का रथ खींचते हैं। अब जब भगवान का रथ तैयार हो जाता है तो एक यात्रा होती है, उसको पहांडी विजय यात्रा कहते हैं। भगवान को, बलराम को सबसे पहले लाया जाता है, फिर सुभद्रा जी को और फिर जगन्नाथ जी को लाया जाता है। अंतिम जगन्नाथ आते हैं खींचते हुए, बड़े ही, उनके सिर के ऊपर जो लगाते हैं उसको कहते हैं टहिया। बड़ा सुंदर टहिया लगाया जाता है और वो टहिया को हिलाते हुए, मुकुट को हिलाते हुए, नशे में, किस चीज का नशा है? राधा रानी के प्रेम का नशा है। नशे में जैसे व्यक्ति बेहोश होकर गिरता है, लाल लाल आंखें हो जाती हैं, ऐसे ही बड़ी बड़ी इंटॉक्सिकेटेड आईज से जगन्नाथ जी खिंचते हुए धीरे धीरे रथ पर चढ़ते हैं। अब रथ पर आकर बैठ जाते हैं जगन्नाथ जी। तो रास्ते के अंदर उनके पैरों में तकिए लगाए जाते हैं ताकि रगड़ ना लगे, और वो तकिए एक ही बार में फटकर रुई पूरी आकाश में फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे भगवान जगन्नाथ को फ्लावर, देवता लोग फ्लावर शॉवरिंग कर रहे हैं। और बताते हैं भगवान जब 22 सीढ़ी उतरकर आते हैं, उस द्वार को कहते हैं सिंह द्वार, जिससे भगवान जगन्नाथ आते हैं। मेन गेट सिंह द्वार है जहां रथ खड़े होते हैं। 3 द्वार पीछे हैं, अश्व द्वार, बाघ द्वार, हस्ती द्वार, गज द्वार भी कहते हैं, हाथी द्वार। लेकिन उन तीनों द्वारों से एक से देवता प्रवेश करते हैं, एक से भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, एक से राजा लोग प्रवेश करते हैं, पुजारी लोग प्रवेश करते हैं, और भक्त लोग मेन गेट सिंह द्वार से प्रवेश करते हैं। ऐसे 4 द्वार है, लेकिन मुख्य द्वार है सिंह द्वार। सिंह द्वार से भगवान जगन्नाथ जी को लाया जाता है। 22 सीढ़ियां हैं, उनसे उतार के, उन्हें 22 पाचा कहते हैं, पहचा यानी 22 स्टेयर्स। 22 ही क्यों सीढ़ियां बनाई गई हैं? क्योंकि हम लोग जिस लोक में रहते हैं उसे पृथ्वी लोक कहते हैं। इसके ऊपर 6 लोक हैं, इसके नीचे 7 लोक हैं। ऊपर भूलोक के ऊपर है भुवलोक, स्वर्गलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, सत्यलोक। नीचे तल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। 14 लोक और 8 प्रकार के वैकुंठ हैं। तो 8 और 14 को गुणा कर टोटल करें तो 22 बनते हैं। तो भगवान जगन्नाथ गोलोक वृंदावन धाम से 8 वैकुंठों से उतरते हुए नीचे, और 14 लोग उतर के नीचे संसारी भौतिक लोगों को आशीर्वाद देने के लिए 22 लोग नीचे आते हैं। इसलिए उसे 22 पहाचा, 22 स्टेयर्स उतर के भगवान आते हैं। जब भगवान आते हैं उसको कहते हैं पहांडी विजय यात्रा। भगवान की विजय हो गई, पांडवों की विजय जैसे हो गई थी। भगवान को नचाते डुलाते आएंगे। फिर भगवान को खिचड़ी का भोग लगता है। भगवान खिंचने से, नशे में, वृंदावन के भाव में उनको ज्यादा भूख नहीं लगती है, और भगवान वृंदावन के भाव में कुछ खाते नहीं है। फिर भी उनको रथ के ऊपर पहला भोग खिचड़ी भोग लगाया जाता है। खिचड़ी भोग खा करके ठाकुर जी को फिर सुदर्शन चक्र लाया जाता है। सुदर्शन चक्र की परिक्रमा कराई जाती है। सुदर्शन चक्र को 3 रथों की परिक्रमा कराने के बाद जो सुभद्रा महारानी है, उनके रथ के ऊपर आरोहण किया जाता है। तो भगवान जगन्नाथ की आंखें इतनी बड़ी बड़ी, एक पलक नहीं झपकते। जगन्नाथ नशे में इस यात्रा को डोला यात्रा भी कहते हैं, और भगवान जगन्नाथ को चक्का डोला कहते हैं। जिनकी चक्के जैसी, रथ के चक्के जैसी आंखें, चक्का डोला या फिर डोलायमान जगन्नाथ को कहते हैं। भगवान के 2 उत्सव विग्रह हैं। एक तो बड़े विग्रह होते हैं जगन्नाथ जी के बिग साइज, और 2 छोटे छोटे विग्रह जिन्हें उत्सव विग्रह कहते हैं। टेम्पल्स में आपने देखा होगा बड़े डीटीज और छोटे डीटीज। छोटे डीटीज को उत्सव विग्रह कहते हैं, जो फेस्टिवल्स में बाहर आते हैं। उत्सव विग्रह के रूप में मदन मोहन और राम कृष्ण, ये 2 विग्रह आते हैं। मदन मोहन विग्रह को रथ पर आरूढ़ कराते हैं जगन्नाथ जी के, और राम कृष्ण के विग्रह को बलदेव जी के रथ पर आरूढ़ कराते हैं। फिर 7 दिन के एक बहुत बड़ा सा पिटारा आता है, जिसमें
खाना पीना, वस्त्र, जैसे आप जब जाते हो इंडिया आते हो आप लोग, पैकेजिंग करके आते हो, तो भगवान जगन्नाथ अब वहां पर 7 दिन रहेंगे, तो इसलिए उसमें उनके ऑर्नामेंट्स, उनके श्रृंगार, उनकी पगड़ी, वस्त्र, भोजन सामग्री सब पेटियों में बंद करके ताला लगा के रथ पर रखी जाती है। फिर एक गोल्डन झाड़ू आती है, स्वर्ण झाड़ू, जिससे जो पुरी के राजा हैं इंद्रदुम्न के वंशज, वो झाड़ू लगाते हैं। उस झाड़ू लगाने को कहते हैं हेरा पहरा। हेरा पहरा, हेरा पहरा मतलब भगवान जगन्नाथ का जो भक्त है, वो भगवान का दास है। दास का कर्तव्य है भगवान जगन्नाथ जी की सेवा करना, और वो भगवान जगन्नाथ जी के लिए गोल्डन स्वर्ण झाड़ू लगाएंगे। एक भी मिट्टी का कण जगन्नाथ के रथ को स्पर्श नहीं होना चाहिए, इस भाव से कि हे ठाकुर जी, आप वृंदावन जा रहे हैं इतने भाव में, और हम आपके रास्ते में फूल, पुष्प, जल, इत्र आदि बिखेरते हुए चलेंगे। 5 दिन जब रथ पहुंचने में, पहले दिन जब निकलता है आषाढ़ द्वितीया को, तो ऐसे प्लान करिए, सेकंड पूर्णमासी हुई, अमावस्या हुई, अमावस्या के अभी पूर्णमासी हुई है स्नान यात्रा, फिर चलेगा अमावस्या से जो दूसरा दिन आएगा द्वितीया को चलना शुरू होगी रथ, या तो सेम डे पहुंच जाएगा। कभी कभी भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों के प्रेमी हैं, और अगर कोई प्रेमी भक्त कह दे मैं सनातन धाम से आ रहा हूं, जगन्नाथ जी रुक जाइए, मुझे दर्शन करना है, हो सकता है आपके भाव से जगन्नाथ जी रुक जाए, आगे ना बढ़े। हर साल जगन्नाथ जी किसी न किसी भक्त के लिए रुक जाते हैं, और फिर सारे लाखों लोग खींचते हैं, लेकिन जगन्नाथ रथ चलता नहीं है। लोग सोचते थक गए, चल नहीं पा रहे, रथ में कुछ खराबी आ गई है, परंतु अगले दिन जब भक्त आ जाता है, 30-40 लोग खींच के जगन्नाथ रथ को ले जाते, लाखों लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। ये भगवान का अद्भुत प्रेम है। भगवान सालबेग के लिए रुके, भगवान बलराम दास के लिए रुके, ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, अनेकों कथाएं हैं, जहाँ भगवान अपने भक्तों के लिए वेट करते हैं कि आओ मेरे भक्तों, मेरा दर्शन करो। आप बस पुकार दो, हे जगन्नाथ, मैं आ रहा हूं आपके दर्शन के लिए, जस्ट वेट। भगवान वेट करेंगे, आएगा मेरा प्रेमी भक्त। भगवान 1 इंच भी नहीं हिलते जब तक भक्त नहीं आता है। और ऐसा ही नहीं केवल सनातन धर्मी हो, हिंदू हो, ब्राह्मण हो, सालबेग एक मुसलमान था, उसके पिता ने एक मुसलमान लेडी से शादी किया, मतलब वो मुसलमान था, उसने हिंदू स्त्री से शादी किया, लेकिन अपनी पत्नी से शादी करके उसने हिंदू स्त्री को मुसलमान बना दिया। लाल बेग नाम था उसके पिता का, लाल बेग का पुत्र हुआ साल बेग। लाल बेग मृत्यु हो गई थी, साल बेग को उसकी पोजीशन मिल गई, राजा का सेनापति बन गया, लेकिन एक बार युद्ध में बहुत मारा गया, शरीर में बहुत घाव लगे थे, तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पूरे शरीर में इतने घाव लगे हैं, आप कोई रास्ता बताओ, क्या मैं मर जाऊंगा? माँ बोली, बेटा देखो, तुमने युद्ध किया है, और युद्ध में जो व्यक्ति प्राण छोड़ता है, अवश्य उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, परंतु तुम चाहते हो कि तुम्हारी रक्षा हो, तो इस संसार में एक ही रक्षक है, देयर इज वन प्रोटेक्टर, होल वर्ल्ड, एक ही रक्षा करने वाले हैं, कौन? उनका नाम है श्री कृष्ण, हरि, जगन्नाथ। अगर तुम जगन्नाथ का भजन करो, तो अवश्य जगन्नाथ तुम्हारी रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर उसकी माँ चली गई। वो लेटा लेटा, काफी सारी दवाई लगी थी शरीर में, तलवारों के घाव थे, खून निकल रहा था, जगन्नाथ 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 भगवान का नाम कीर्तन करता रहा। देखते हैं, जिस दिन उसने ये कहा, इतने दिन हो गए हैं मुझको जगन्नाथ जी का भजन करते हुए, क्या आप भगवान नहीं आएंगे? मुझे तो लगता नहीं तुम्हारे भगवान मेरी रक्षा करेंगे। उसने ये बात बोली, और उसी दिन उसके सारे घाव ठीक हो गए। वो समझ गया ये सब जगन्नाथ ने किया है। उसके मन में बड़ी अभिलाषा आई, बोला भगवान का जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चालू हो गई होगी, मैं स्वस्थ हो गया हूँ माँ, सबसे पहले धन्यवाद जगन्नाथ जी को देना चाहता हूँ। माँ बोली, ठीक है जाओ पूरी। चल दिया अपने गांव से, शहर से। चलते 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 इसके मन में अभिलाषा है कि आज तो रथ यात्रा होगी, मुझे पहुंचने में कल हो जाएगी, देरी हो जाएगी,
रथ तो चला जाएगा, भगवान गुंडीचा मंदिर चले जाएंगे, लेकिन क्या देखते हैं, रथ रुक गया, लाखों लोग चिल्ला रहे थे जय जगन्नाथ, पर जगन्नाथ जी का रथ हिलता नहीं है। क्या हो गया? अरे कोई भक्त आने वाला होगा। देखते हैं भीड़ के मध्य में सालबेग आया, भगवान जगन्नाथ को प्रणाम किया। भगवान जगन्नाथ ने अपनी माला पंडा के माध्यम से सालबेग को पहनाई और रथ चलने लग गया, अपने आप ही स्वतः चलने लगा। और अगले दिन गुंडीचा मंदिर पहुंचा। आज भी उस रथ का जो मार्ग है, जगन्नाथ जी रथ यात्रा का मार्ग, उसमें एक समाधि मंदिर है। वहां लिखा है सालबेग की समाधि। सालबेग ने अपने प्राण त्याग दिए भगवान जगन्नाथ का भजन करते करते। तो कोई किसी भी जाति का हो, भगवान जगन्नाथ उसका इंतजार करते हैं। जगन्नाथ जी किसी एक जीव या एक जाति समुदाय की नहीं है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सबके प्रेमी है और सबका इंतजार करते हैं। इस प्रकार जगन्नाथ जी श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं, जहां की आभा श्री वृंदावन धाम का स्मरण कराती है। भगवान जगन्नाथ जी उस सुंदर वृंदावन धाम में पहुंच के, एक वेदी है महावेदी, उस पे केवल 7 दिन 9 दिन तक ही जगन्नाथ जी रहते हैं। फिर वापस वो मंदिर बंद हो जाता है और अगले साल फिर खुलता है। तो भगवान का रथ आने से पहले, जैसे इस बार रथ यात्रा 27 की है भारत में, तो 26 को एक फेस्टिवल मनाया जाएगा, उसका नाम है गुंडीचा मार्जन, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया जितना जितना मार्जन करेंगे उतना उतना हृदय की सफाई होगी, और फिर हमारा स्थान हृदय वो बनेगा महावेदी, जिसमें जगन्नाथ जी को खींच के हम अपने हृदय के अंदर लाएंगे। रथ यात्रा का भाव है जगन्नाथ को खींच के अपने हृदय में बिठाना। तो जगन्नाथ जी को खींचा जाता है, पहले मार्जन किया जाता है, अपने हृदय की सफाई की जाती है। भगवान जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं, फिर वहां वैसा ही भोग लगेगा भगवान जगन्नाथ जी को, जैसा भोग उनको श्री मंदिर में लगता है, वैसा ही भोग, वैसे ही चूल्हे, सब कुछ वैसा ही भोग लगेगा, लेकिन वृंदावन का भोग लगेगा। जगन्नाथ मंदिर में उनको दाल चावल खिचड़ी लगता है, और गुंडीचा में वृंदावन भाव में मालपुए, लड्डू, मक्खन, मलाई कृष्ण अपना वृंदावन के भाव का भोजन खाएंगे। और जब 9 दिन गुजर जाएंगे, तो उस 9 दिन के मध्य में क्या होगा, 5वां दिन जब आता है, 5th डे, तो वो अपनी वाइफ लक्ष्मी जी को बोलकर आए हैं, मैं जा रहा हूँ लक्ष्मी, थोड़ा मुझे श्री मंदिर जाना है, श्री मंदिर से मैं थोड़ा जा रहा हूँ वृंदावन, 2 दिन में आ जाऊंगा। तो लक्ष्मी जी गुस्सा करती हैं, कह के गए थे 2 दिन में आ जाऊंगा, 5 दिन हो गए अभी तक नहीं आए हैं। तो उनके पंडा हैं, लक्ष्मी पंडा, वो लोग पालकी पे लक्ष्मी जी को बिठाते हैं, और फिर एक यात्रा निकलती है 5वें दिन, 5th डे आफ्टर द रथ यात्रा। जैसे 27 को इस बार रथ यात्रा है, और 26 को है आपका गुंडीचा मार्जन। तो जब 27 के बाद आप देखेंगे कि 5वां दिन आएगा 1 जुलाई को, 1 जुलाई, उस दिन होगा हेरा पंचमी उत्सव। हेरा पंचमी का मतलब है लक्ष्मी जी जाएंगी बड़े गुस्से के साथ, बोल के गए थे 2 दिन में आ जाऊंगा, 5 दिन हो गए, अपनी माँ से इतना प्रेम करना है तो शादी क्यों की थी क्यों चले गए हो? गुस्सा करके आएंगे उनके पंडा, और भगवान का रथ बाहर खड़ा होगा, एक हथौड़ा लेके तोड़ देंगे, आवाजें आएंगी धड़ाम धड़ाम, और इधर जगन्नाथ जी के पंडा लोग गुंडीचा मंदिर के द्वार बंद कर देंगे, ताकि लक्ष्मी जी अंदर ना आ जाए। जगन्नाथ कहेंगे बंद कर दो द्वार, लक्ष्मी अंदर ना आ जाए, ले जाएगी। और लक्ष्मी जी बाहर गिल्टी हो जाएगी, अरे मैंने अपने पति की गाड़ी तोड़ दी, कैसे वापस आएंगे, चलो भागो भागो, पकड़ लेंगे तो बदनामी हो जाएगी। तो एक गली है, उसका नाम है हेरा फेरी गली, वो पतली गली से भाग जाएंगे, कहते हैं ना पतली गली से भाग जाओ, पतली गली से भाग जाएंगी लक्ष्मी जी के पंडा लोग, और फिर लक्ष्मी जी अपने घर चली जाएंगी। 5 दिन के बाद जब 9वां दिन आएगा, जो कि इस साल आने वाला है 5 जुलाई को, उसको कहते हैं बहुड़ा यात्रा। 5 जुलाई को आएगा बहुड़ा यात्रा, रिटर्न ऑफ द यात्रा।
तब 9वें दिन भगवान रिटर्न करना शुरू करेंगे। और वहां पर बीच में एक मंदिर आता है, उसका नाम है मौसी माँ मंदिर, यानी गुंडीचा की बहन मौसी। भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर जाएंगे। वो मौसी कौन है? अर्धसीनी माता। अर्धसीनी माता मौसी कहलाती है। वहां पर भगवान को स्पेशल उड़ीसा का भोग लगता है, पोड़ा पिठा। चावल और काले चने से एक केक बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है बच्चों के लिए। और वो फिर पोड़ा पिठा भोग खा के मौसी माँ मंदिर से जगन्नाथ जी आगे चलेंगे। चलते चलते जगन्नाथ जी 10वीं यानी 6 जुलाई को 10वें दिन अपने द्वार पर पहुंचेंगे। अब यहाँ पर लक्ष्मी जी के जो पंडा है, उनको लक्ष्मी जी कहेंगी द्वार बंद कर दो। 5 दिन के बाद मैं तोड़ा ही, तब भी ये नहीं कि अगले दिन आ जाते, अभी भी 5 दिन और रुक कर आए। इनकी तो गेट की एंट्री बंद कर दो। जगन्नाथ जी को एंट्री बंद हो जाएगी अपने ही मंदिर के अंदर, श्री मंदिर। फिर लक्ष्मी जी देखेगी खड़ी होकर के क्या हो रहा है। तो ऊपर एक मंडप है, जैसे स्नान पूर्णिमा का स्नान मंडप है, ऐसी भोग मंडप के पास एक जगह है, उसे चहनी मंडप कहते हैं। तो चहनी मंडप में लक्ष्मी जी के पंडा खड़े हो जाएंगे। लक्ष्मी जी झुक झुक के देखेगी क्या कर रहे हैं कृष्ण, बेचैन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अरे देखो कितने बेचैन हो रहे हैं। वहां जगन्नाथ जी को एक वेश लगाया जाएगा, स्वर्ण वेश, सोना वेश। सिर पर गोल्डन मुकुट, नीचे पैर गोल्डन, हाथ गोल्डन, चक्र गोल्डन, गदा गोल्डन, सब गोल्ड को असली सोने का वेश। बड़े विशाल का जगन्नाथ जी रथ के ऊपर सारी दुनिया को दर्शन देंगे एकादशी वाले दिन। ऐसे ही एकादशी द्वादशी तक भगवान को एंट्री नहीं मिलेगी, 2 दिन तक भगवान जगन्नाथ द्वार पर ही वेट करेंगे। तब त्रयोदशी का दिन आएगा, 13th डे, तब लक्ष्मी जी को दया आ जाएगी। लक्ष्मी जी का पति है आखिर बाहर खड़ा है, 2 दिन हो गए, बहुत हो गया पनिशमेंट, चलो सेटलमेंट करते हैं। तो वो लक्ष्मी जी के पंडा और जगन्नाथ जी के पंडा मिलके आपस में एक दूसरे को सफेद गुलाब जामुन खिलाएंगे, सफेद रसगुल्ले छेना वाले, और सब लोग खाएंगे। फिर लक्ष्मी की और नारायण की भेंट होगी, आंख से आंखें मिलेंगी, आंखों से आंखें मिलेंगी, आंखें 4 होंगी। जगन्नाथ लक्ष्मी को देखेंगे, लक्ष्मी जगन्नाथ को देखेंगी, और फिर लक्ष्मी जी कहेंगी अगली बार गए ना तब देखना। लेकिन जगन्नाथ जी फिर हर साल निकल जाते हैं, यही बात। तो ये हर साल की लीला है। और इस लीला को जो अंत में होती है, इसको नीलाद्री विजय यात्रा कहते हैं। तो सबसे पहले हुई स्नान यात्रा, फिर 15 दिन बाद हुई महावेदी यात्रा, फिर महावेदी से हुई रथ यात्रा, फिर रथ यात्रा से हुई हेरा पंचमी, फिर हेरा पंचमी से हुई बहुड़ा यात्रा, फिर बहुड़ा यात्रा से हुई चहनी यात्रा, फिर चहनी यात्रा से अंत में हुई नीलाद्री। नीलाद्री यानी नीले पर्वत पर, आद्री यानी पर्वत, नीले पर्वत पर रहने वाले जगत के नाथ जगन्नाथ विजय कर लेते, वापस अपने सिंहासन पर आरूढ़ होते। ऐसे भगवान को कहते हैं जगन्नाथ। तो ऐसे जगन्नाथ हर वर्ष इस यात्रा को निकालते हैं। भगवान के अनंत गुण हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, 64 गुणों का वर्णन किया गया भगवान के। और श्री कृष्ण भगवान को एक गुण है, अपने ही गुण सुनने में बड़ा आनंद आता है। भगवान को जब अपना गुण सुनते हैं तो आनंद का संचार होता है, पूरे शरीर में आनंद ही आनंद होता है अपने गुण सुन के। आपको भी सबसे ज्यादा अच्छा कब लगता है? जब लोग आपके गुण गाते हैं, आप कहते हो अरे थैंक यू थैंक यू, नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है ना। लेकिन मन होता है माइक लेके बोलो ना प्लीज, कोई रिकॉर्ड करो ना, कितना अच्छा बोल रहे मेरे तो ये कृष्ण को भी मन है। कृष्ण का मन है, अनंत गुण है श्री कृष्ण के, लेकिन 64 मुख्य गुण है। श्री कृष्ण को जीव गोस्वामी कहते हैं, श्री कृष्ण के गुण श्रवण कर व्यक्ति भी गुणवान बन जाता है। इतने सुंदर गुण है, जैसे गुण, जैसे हम भगवान कृष्ण की जगन्नाथ यात्रा को जितने डिटेल में सुनेंगे, जितने प्रेम से सुनेंगे, कहते हैं लव डिटेलिंग इज अ सिम्टम ऑफ लव। जितना डिटेल से समझेंगे उतना ही प्रेम का वर्धन होगा, और गुणवान वक्ता बनेंगे, गुणवान बन जाएंगे हम लोग। तो हम किसी के जब गुण गाते हैं तो हमारी उससे आसक्ति भी होती है। हम जब उस किसी के गुण देखते हैं तो हमें बड़ा अटैचमेंट होता है उस व्यक्ति से, कि देखो कितने अच्छा व्यक्ति है, इसके इतने अच्छे गुण हैं। तो अगर हम भगवान जगन्नाथ के गुण गाएंगे, जगन्नाथ अष्टक गाएंगे, जगन्नाथ के कीर्तन गाएंगे, जगन्नाथ यात्रा निकालेंगे, तो हमें जगन्नाथ जी से भी प्रेम उत्पन्न हो जाएगा।
जैसे कृष्ण का एक सुंदर स्वरूप साकार स्वरूप है, प्रभुपाद जी ने उनको नाम दिया सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ही सुप्रीम, उनके बराबर कोई नहीं है। सुप्रीम, सुप्रीम का मतलब होता है ना तो कोई बराबर है ना कोई ऊपर है। सुप्रीम पर्सनैलिटी, वो कोई निराकार नहीं है, वो साकार है। और गॉड नहीं है, गॉड हेड है। शिव जी भी गॉड है, दुर्गा भी गॉड है, पर गॉड्स के हेड है श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण का रंग इंद्रनील मणि सदृश भगवान का सुंदर स्वरूप है। चंद्रमा जैसा मुख है भगवान का, अति सुंदर ठोड़ी है भगवान की, गले में मुक्त माला विभूषित होती है, और कंठ में भगवान सुराई जैसी पतली गर्दन लेके अपने अनेक भुजाओं के साथ कर कमल, हाथ कमल जैसे, चरण कमल, सुंदर चिन्हों से अंकित चरण कमल है भगवान के। भगवान कृष्ण के अंग 7 अंग हैं, उनमें मुख्य रूप से जिसमें अरुणिमा झलकती है, यानी लाल रंग के जो 7 अंग हैं, लाल नेत्र लाल रंग के हैं, ओठ अधर लाल रंग के हैं, जिह्वा लाल रंग की है, तालू लाल रंग की है, हाथ लाल रंग के हैं, पैर लाल रंग के हैं, और नाखून लाल रंग के। ये भगवान के 7 अंग अरुणिमा लालिमा युक्त भगवान के अंग है। 7 बॉडी पार्ट्स विच आर रेड इन कलर, रेडिश इन कलर। 3 अंग लघु हैं भगवान के, गर्दन, जांघें, जनांग। तो बहुत छोटे छोटे, हाथ नहीं पैर नहीं, भगवान कह सकते तो है ही नहीं, वो छोटे छोटे। 3 अंग बड़े गहरे हैं, वाणी, भगवान की नाभि और उनकी बुद्धि, ये 3 अंग भगवान के बड़े गहरे हैं। भगवान की वाणी बहुत गहरी है, वो अपने भक्त की रक्षा हेतु हमेशा अपनी वाणी से बोलते हैं। हमको बस बात करना आना चाहिए। अगर हम सदाचारी हो, नियमों का पालन करें, चैंटिंग करें, कृष्ण नाम का जप करें, कृष्ण कथा का श्रवण करें, भगवान कृष्ण का प्रसाद पाएं, अवश्य ही भगवान आपसे बात करेंगे। गारंटेड है, गारंटेड है। कृष्ण विल टॉक टू यू। Nobody has talked to you till now so deeply, so intensely, but Krishna will talk to you definitely. उसके लिए आपको क्या करना होगा? उनकी गहरी वाणी से आत्मसात करना होगा। भगवान नित्य किशोर निवासित है, वो हमेशा एक युवा रूप में रहते हैं, और उनकी उम्र 15 वर्ष 9 महीने 7.5 दिन। ये स्थापित है भगवान की विविध अद्भुत लीलाओं में से कि वो कभी 15 वर्ष से ऊपर नहीं जाते, इतनी ही उनकी आयु रहती है। मधुभाषी हैं, प्रियवदम है भगवान, जब भी बोलते हैं मीठा बोलते हैं, गहरा बोलते हैं। जब उन्होंने कालिया नाग को मर्दन किया, एक दुष्ट पापी नाग को भी भगवान ने क्या बोला? हे फणींद्र, फणींद्र यानी फनों के इंद्र, फनों के राजा, हरफन मौला जैसे बोलते हैं, फनों के राजा, हे फणींद्र, मैं तुम्हारी उद्धार हेतु यहाँ आया हूँ। ये भगवान की मृदु भाषा है, एक दुष्ट पापी को भी प्रेम से बोलते हैं। भगवान की वाक पटुता है, ऐसे शब्द बोलते हैं जो लोगों के प्रिय, कानों को प्रिय लगते हैं। तो जगन्नाथ जी इतने प्रेमी हैं। जगन्नाथ जी की एक भक्त थी, उसके पिता माली था, वो खेतों में काम करता था और बैगन के बीज लगा के बैगन का पेड़ उगाता था। बैगन में कांटे होते हैं, और बैगन जो था उसे दिया करता था जगन्नाथ के भोग के लिए। उधर उसकी जो कन्या थी, वो रात में जगन्नाथ जी के प्रिय लगने वाले गीत गाती थी। भगवान बड़े बुद्धिमान है, अत्यंत विद्वान है, प्रज्ञावान है, प्रतिभावित भगवान है। ऐसे भगवान ने जब श्रवण किया सुंदर गीत का, तो प्रति रात्रि जगन्नाथ जी अपना महल छोड़ के उसके पीछे पीछे बगीचे में चले जाते हैं। रोज सुबह जब पुजारी लोग जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं मंगल आरती में, अरे आज भी कपड़ा फटा है, आज भी कपड़ा फटा है, ऐसा क्या हो गया? हे जगन्नाथ, आप कहाँ जाते हैं प्रति रात्रि? भगवान कुछ नहीं बोले। पुजारी लोग बोले पीछा करना पड़ेगा। रात को 2 बजे तो भगवान सोए, 2:30 बजे पंडा लोग ध्यान लगाकर देखे भगवान जगन्नाथ कहाँ है? सिंहासन पर नहीं है, महावेदी से गायब है, कहाँ गए? हे जगन्नाथ, ढूंढा, पता चला भगवान जगन्नाथ वो माली की जो कन्या है उसके पीछे पीछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गीत गाती। कौन सा गीत गाती है? गीत गोविंद गाती है। जयदेव गोस्वामी रचित गीत गोविंद का वो भजन करती है। तो भगवान जगन्नाथ इतने प्रेमी है अपने भजन के, गीत गोविंद के,
सुनने के लिए पीछे पीछे जाते, कपड़े में कांटे लग जाते बैगन के खेत के तो फट जाते। पुजारी समझ गए, बोले हे प्रभु आपको गीत गोविंद इतना पसंद है तो हम उस कन्या को बुला देंगे, वो गीत गोविंद यहीं गाएगी। तो प्रति रात्रि उस कन्या ने गीत गोविंद गाना प्रारंभ किया। तब से आज तक भी भगवान जगन्नाथ जब सोते हैं तो उनको गीत गोविंद शयन आरती में सुनाया जाता है और उनके शरीर पर गीत गोविंद की चादर उड़ाई जाती है, तब जाके जगन्नाथ जी शयन आरती करते सोते हैं। अन्यथा भगवान को जब तक गीत गोविंद की चादर ना पहनाओ, आपको अगर वो गीत गोविंद की चादर चाहिए तो कभी कभी उसके ऊपर चंदन जब लगता है उतारी जाती है, तो वो गिफ्ट में निर्माल प्रसाद के रूप में भेजते हैं भक्तों को। एक टुकड़ा 5,000 रुपए इंडियन रुपी में लेते हैं, तब पुजारी लोग वह गीत गोविंद की चादर ठाकुर जी की छाती से लगी हुई, वह चादर इतनी प्रिय है भगवान को, पंडा लोग देते हैं। तो भगवान दृढ़ संकल्प है अपने भक्तों के, व्रजवासियों की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अर्जुन की रक्षा करी, उसको विजय दिलाई, इसलिए भगवान की रथ यात्रा को पांडी विजय यात्रा भी कहते हैं। पांडवों की विजय कराई भगवान ने। तो इस रथ यात्रा हम सब अपने मनोभाव से जगन्नाथ जी की सेवा करें, भगवान जगन्नाथ को अपने हृदय में लाने की कोशिश करें। इस जगन्नाथ यात्रा में जो जगन्नाथ है उनके रथ में 16 पहिए हैं, बलराम के रथ में 14 पहिए हैं और सुभद्रा के रथ में 12 पहिए। इनको जब टोटल करते हैं तो बनते हैं कितने, 42। और जब 42 को टोटल करते हैं कितना हुआ, 16, 14 और 12 कितना हो गया, 42। 42 को जब डबल करेंगे 42 पहिए जाते हैं रथ यात्रा में, 42 पहिए आते हैं, तो डबल हो गया ना, एक बार जाना एक बार आना, तो दैट बिकम्स 84। तो जो व्यक्ति रथ यात्रा की कथाएं सुनता है, रथ यात्रा को देखता है, रथ यात्रा में भाग लेता है, उस व्यक्ति को 84 लाख योनियों में आना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने 84 पहियों को आना जाना किया है। सो भगवान जगन्नाथ इतने कृपालु हैं, कलयुग में रेसिप्रोकेटिंग गॉड है। आप लोग जो नए हैं या जो पुराने हैं, सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए भगवान जगन्नाथ को कुछ अष्टक पढ़कर सुनाए, कुछ भजन गाकर सुनाए। अवश्य ही जगन्नाथ जी आपसे बात करेंगे, आपके मनोभाव। आज भी कलयुग में लोग इतने सारे भक्त अनुभव बताते हैं, जगन्नाथ जी ने ये किया, जगन्नाथ जी ने हमको ऐसे दर्शन दिए, जगन्नाथ जी ने ऐसा किया। अद्भुत लीलाएं हैं। अभी हम लोग पिछले महीने जगन्नाथपुरी धाम यात्रा गए थे, 5 दिन रहे वहां पर, अलग अलग दर्शन स्थलियों पे गए। आखिरी में सभी भक्तों ने अपने अपने अद्भुत अनुभवों को बताया, वो आप यूट्यूब में सुन सकते हैं, कैसे भक्तों ने अनुभव बताया, जगन्नाथ जी क्या करते हैं हमारे साथ, क्या क्या किया। अद्भुत घटनाएं करेंगे आज भी। सो जगन्नाथ जी इज रियल गॉड, ही इज नॉट अ डीटी, कोई लकड़ी की मूर्ति नहीं है, वह जगत के नाथ है। आप भक्त बन जाइए, भगवान के, भगवान आपसे वार्तालाप करेंगे, आपके मन की इच्छाएं पूरी करेंगे। संपूर्ण सृष्टि में अगर कोई सबसे प्रिय भगवान है, सबके कृपालु भगवान है, सबसे दयालु भगवान है, तो उनका नाम है जगन्नाथ। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। तो अभी सनातन धाम भक्तों का कोई प्रश्न हो तो फिर हम वो चर्चा कर सकते हैं। अरे क्या हुआ? हाँ? नहीं वो जीरो इधर नहीं वी आर देयर सॉरी। हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है प्रभु? हरि बोल। यस यस प्रभु जी, यस यस। तो लाइट चालू कर सकते हैं, एक वाली जो छोटी वाली है। आप लोगों को अच्छा लगा, सुनाई दिया सबको? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेरी क्लियर, हाँ। वेरी क्लियर। तो किन्हीं भक्तों का कोई प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। रथ यात्रा से कोई- रिलेटेड क्वेश्चन हो या गीता भागवत या अपनी फैमिली लाइफ, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। You can ask. मुझे आपको पूछना है तो कुछ डिफरेंट हो जाए, टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगा। ना कुछ भी है तो पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं पूछ सकते। टॉपिक तो लंबी चलेगी। एक आपने प्रभु जी अभी आपने एक बताया था कि 84 योनियों से हम लोग फ्री होते हैं। तो जी जी एक जी। जिज्ञासा कि हम अभी जब हम जगन्नाथ यात्रा की हम रथ यात्रा करते हैं तो हमारे तो बस वो 4 पहियों वाला रथ रहता है या 2 पहियों वाला रथ होता है, इसको खींचते हैं। तो
भाव भले ही हमारा हो, बट लाइक ये जो है तो इसको कैसा हम ट्रीट करेंगे, लाइक हम तो 2 पहिए और 4 पहिए वाले रथ को खींचते हैं, तब जी ये योनियान लोग मीन्स लाइक कोई प्रश्न करते हैं तो उसको कैसे जवाब देना चाहिए? मैंने ये बोला ऐसा मेरे को लग 84 लाख योनियों में से वो भी मुक्त होते हैं जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ को रथ पर बैठा हुआ देखते हैं। तो तब दर्शनात् मुक्ति, तो केवल दर्शन करने से भी मुक्ति होती है। और हमने रीजन बताया। अब जैसे कोई व्यक्ति बोलेगा हमारे तो 22 सीढ़ी नहीं है, हम तो 22 सीढ़ी से नहीं लाते हैं, हमारे तो 42 पहिए नहीं हैं। तो ये कथा भी श्रवण करने से वही फल मिलता है। जैसे एकादशी कथा को बोलें, सुने या व्रत करें, तीनों में ही बराबर फल मिलता है। वैसे ही हरि कथा, भागवत कथा सुनने से भी वही फल मिलता है जो साक्षात रूप में उस स्थान पर जाने से मिलता है। सो आप लोगों को कोई लॉस नहीं होगा अगर आप जगन्नाथ जी की कथाओं को जगन्नाथ रथ यात्रा वाले दिन श्रवण करेंगे और उसी मनोभाव से उस रथ को खींचेंगे कि हम जगन्नाथ जी को वृंदावन ले जा रहे हैं या अपने हृदय में ले जा रहे हैं, तो अवश्य ही जगन्नाथ जी प्रसन्न होंगे और आपको भी 84 लाख योनि में नहीं आना पड़े। हरी हरी बोल। किसी का प्रश्न? अरुण, और भक्त अरुल आपसे प्रश्न करना चाह रहा है प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रणाम। मुझे आपसे पूछना है कि ये जगन्नाथ रथ यात्रा हम क्यों करते हैं? जगन्नाथ जी अपने मौसी जी से मिलते हैं या फिर वृंदावन जाते हैं? कौन सा मेन रीजन होता है उनकी रथ यात्रा का? तो द मेन रीजन जो मैंने बताया, भगवान को वृंदावन को छोड़े हुए 100 वर्ष हो गए हैं और द्वारिका में भगवान जब थे तो एक बार भगवान द्वारका जोर जोर से चिल्लाने लगे, राधे राधे राधे। तो भगवान से पूछा क्या हुआ? बोले मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो वृंदावन के भाव में भगवान को खींच करके रथ पर बिठाया गया और सबसे आगे सुभद्रा जी चली, उससे आगे बलदेव जी चले ताकि भगवान को वृंदावन लाया जा सके। तो वृंदावन में एक स्थान है भांडेर वन, वहां पर भगवान कृष्ण की और व्रजवासियों की मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद भगवान द्वारकाधीश पुनः द्वारका चले गए। तो उसी मीटिंग को आचार्यों ने कहा है वही रथ यात्रा है। उसी भाव से श्री मंदिर यानी द्वारका और गुंडीचा मंदिर यानी वृंदावन, तो द्वारिका से खींचकर भगवान को वृंदावन लाया जा रहा है। और भगवान अपने वृंदावन के प्रेम के भाव में है, इसलिए उनको रस्सियों में बांधना पड़ता है, खींचना पड़ता है। अन्यथा वो खुद भी जा सकते हैं, लेकिन वो इतने प्रेम आतुर हैं, प्रेम में डूबे हुए हैं कि उनको खींच कर लाना पड़ता है। तो ये वृंदावन का भाव मुख्य भाव है। उसके बाद फिर अन्य भाव है कि वो गुंडीचा महारानी को वादा किए थे आऊंगा, फिर मौसी को वादा किया अर्धसिनी माता को मैं आऊंगा। तो एक ही यात्रा में अनेक यात्राएं जुड़ जाती, पर मुख्य रूप है वृंदावन जाना। हरी इज इट ओके? यस। Hare Krishna. Thank you, Prabhuji, for the wonderful lecture and giving your time for the people from Jeddah. So, the question what I wanted to ask is like we are also celebrating the Rath Yatra. on वॉइस इज नॉट 27 क्लियर June. प्रभु जी, Hello, can you hear me, Prabhuji? इधर आ। पास आके थोड़ा बोलेंगे तो सही रहेगा। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Thank you, Prabhuji, for the wonderful lecture and for giving your time for today's session. So the question is, we are also celebrating Rath Yatra on 27 June, which is we are also doing in Jeddah and Saudi Arabia. So this place is not that purified compared to what the land of Dharma, which is India. So that is first question: how we should see that and how we should celebrate this festival in Jeddah. And what, because a lot of people, me including other devotees which are here, are very new and they are not aware or they have not seen the Rath Yatra, how it's been celebrated, or what should be the consciousness of our mind, how we should treat the people who are coming, because there might be a lot of people who are coming from different part of the world, because in Right. Jeddah there might be coming from Bangladesh. Okay, I got your from- question. So you are asking ki it's a new land of this new place where we are celebrating in Jeddah. So how should we celebrate in this land? What should be the mood? What should be the consciousness, and how to celebrate? So Prabhuji, in such lands, as per Srila Prabhupada's instructions,
most important is that we should celebrate by hearing about the pastimes of Lord Jagannath. So that is the best way, because through the Shravanam Vidhi, Krishna enters through the ears into our hearts and cleans our hearts. So there should be long discussion of Hari Katha, Jagannath Katha on the day of Jagannath Rath Yatra, as we did today. Similarly, you can also note down points from other kathas and can deliver and then can discuss. Second, we can offer special bhoga to Lord Jagannath. So every devotee can cook something. Those who are new also, they can cook some dry items like biscuits without onion garlic and can be offered to the Lord Jagannath. Jagannath does not see who is cooking, who is auspicious, who is inauspicious. Everybody is accepted by Lord Jagannath. So just it should be free from onion garlic. So food should be offered to Lord Jagannath. Sweets can be offered to Lord Jagannath. Third, on you can have some pictures of Jagannath or a deity if some devotee have. You can do some yatra within the halls or rooms of some area, big rooms. We're doing some big kirtans, not very high, but some kirtans you can do so that you can develop the consciousness of devotees, because in Kali Yuga, consciousness can grow only by chanting of the holy name. So devotees should chant more number of rounds. If somebody is chanting 16, should chant more. If somebody is chanting 8, should chant 10 rounds. If somebody is not chanting any round, should start chanting the rounds on that day. So everybody should be given some mala. They can sit down, chant for Lord Jagannath pleasure. And second, and these are the things one can do. So, but the most important is hearing about Lord Jagannath as much as new people can. So Kirtan, Japa, hearing about Lord Jagannath, offering to the Lord Jagannath, and dancing for Lord Jagannath, thinking that we are dancing in Rath Yatra. Is it okay? Yes. Hare Bol. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Yes, Prabhu. He was Rakesh Prabhu. Actually, he is joined Sanatan Dham Jeddah 6 months back, and probably that is what. So this is almost the 4th year of Jagannath Rath Yatra. Actually, we are celebrating here. Of course, I am here for the last 2 years only. Okay. This will be my 3rd year. When I just joined in July, and we came with Rath Yatra only here. So 3rd time I'll be participating here in Jagannath Rath Yatra, and before that it was one time already happened here with the devotees who are doing 16 rounds, but who are aspirants, and 1-2 devotees are there who were aspirants, and they started this. So it was really that, when I came, I got a ready-made environment of the Ratha. So then we continued it other way. So So you people create Ratha, or what you do inside the rooms? no, it is we take a villa outside this, because it's flats are very small. We take a villa with a rent for a day, and we celebrate it internally. Okay, in a villa. In a villa, yeah, with the villa Okay. and with the proper kirtan and everything. Very nice. No, so this is the best thing. I shared you the Snan Yatra short video, Prabhu. Probably I missed you to send you. We had a Please, Snan please Yatra. share with me. I will see. Yeah, I shared you, Prabhu. It's Hare Krishna. a very brave to celebrate Krishna consciousness in such lands where nobody is Krishna conscious devotee. So it is really you people are diamonds of Krishna consciousness. So we are just delivering the word of Guru and Gauranga. So please bless all the congregation, bro. So, Yeah. I love My prayers for everyone, and you all can ask a number of questions. You can watch many. I have done many Jagannath Kathas, series of Jagannath Kathas on YouTube. So you people can watch if you like, if you understand Hindi. I've done maximum in Hindi. So yeah. One more Prashna, Prabhu. Just yeah, please. जस्ट टू अंडरस्टैंड ये चीज के हम कहते हैं कि भगवान हर जगह मौजूद है, ठीक है ना। तो इस चीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि भगवान वृंदावन से नीचे धरती लोक पे आते हैं, क्योंकि वो तो हर जगह मौजूद हैं। वो तो एज हम कहेंगे जगन्नाथ मंदिर है उसमें भी हर वक्त मौजूद हैं। और फिर हम कहते हैं कि वो जो आपने कहा 22 सीढ़ियों से नीचे उतर के आते हैं, तो इसको आप कैसे कोरिलेट करेंगे इस चीज को? प्रभु जी का अच्छा प्रश्न है। भगवान तो हर जगह है, जगन्नाथ तो हर जगह है, फिर भगवान उतर के कैसे आते हैं?
तो क्या होता है प्रभु जी, भगवान शिव से एक बार पूछा गया, भगवान कहाँ है? जब रावण को मारना था तो एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई। बोले इस मीटिंग में डिस्कस करेंगे रावण का वध कैसे किया जाए। तो सबसे पहले नारद जी से पूछा गया, भगवान कहाँ है? ब्रह्मा जी भी थे, शिव जी भी थे मीटिंग में, नारद भी थे। नारद जी बोले, मुझने एक बार भगवान से पूछा था, भगवान आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान बोले, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेष्वा। मैं ना तो योगियों के हृदय में रहता हूँ, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ। फिर कहाँ रहते हैं? बोले यत्र गायन्ति मद्भक्ताम तिष्ठामि तत्र नारदः। हे नारद, मैं वहां रहता हूँ जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं। अभी व्यक्ति बोले वैकुंठ में नहीं होते भगवान, तो फिर हम जब वैकुंठ जाएंगे बैक टू गॉडेड और भगवान मिलेंगे ही नहीं, तो फिर हम वैकुंठ जाके क्या करेंगे? सो कृष्णा इज देयर, नो डाउट, वैकुंठ में भी है, पर ये भगवान के मनोभाव होते हैं। भगवान रस राज है, रस से भरे हुए हैं। फिर शिव जी से पूछा गया, शिव जी आप बताइए। शिव जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हरि हर जगह है, पर प्रेम से प्रकट होते हैं। So Krishna is bound by love. So Jagannath is always everywhere. उनका नाम है विष्णु। विष्णु के, विश्व के हर अणु में, हर एटम में जो विराजमान है उसे कहते हैं विष्णु। पर प्रेम से प्रकट होई में जाना, तो प्रकट होने का मतलब क्या है? जैसे प्रहलाद महाराज के लिए भगवान कण कण में विराजमान थे, पर उस खंबे से भगवान निकल करके आ गए। क्या खंबे में थे? क्या भगवान वहां थे? नहीं थे। लेकिन भगवान ने बोला, मेरे भक्त प्रहलाद ने बोला, निज भृत भाषितम, मेरे भक्त की भाषा है, उसने बोल दिया कि मैं हूं खंबे में तो मैं हूं। हरि व्यापक सर्वत्र सर्वत्र है, पर प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो जगन्नाथ रथ यात्रा जो फेस्टिवल है, उस दिन भक्त बड़े प्रेम से सोचते हैं हम कितने दीन हैं, हम कितने निकृष्ट हैं। हमारे जगन्नाथ जी हमारे लिए उस लोक वैकुंठ लोक गोलोक को त्याग के इस भूमि पर आए हैं। हे जगन्नाथ, आप बड़े दयालु हैं। उस भाव से भगवान जगन्नाथ जी को बाहर लाते हैं। अदरवाइज ही इज एवरीवेयर, ही इज ऑलवेज देयर, बट विद मोर लव, इंटेंसिटी ऑफ लव, डिवोटीज प्रे लाइक दिस। यू गॉट माय पॉइंट? हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जहाँ भक्ति होगी वहाँ भगवान होंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि भक्ति तो हर जगह पे है, सिर्फ जगन्नाथ जगह या पुरी में तो नहीं है ना, बाकी तो हर जगह हर जगह भक्ति है हमारी, ठीक है ना। इवन हम जी अभी बैठे कीर्तन कर रहे हैं तो एक भक्ति है, तो यहाँ पे भी हमारे दरम्यान भगवान है, ठीक है। अब जिसकी आंखें बहुत ज्यादा भक्ति में होंगी वो उनको देख रहे होंगे, और अभी हमारी आंखें इतनी शुद्ध नहीं है तो हम नहीं देख पा रहे हैं जिसको के। पर वही मैं, मेरा सिर्फ सवाल ये था कि सिर्फ जगन्नाथ या पुरी को ही ये इतना आप कह लें कि महत्व दिया गया है, तो ये बाकी जो अन्य स्थान है उसको इतना महत्व क्यों नहीं मिला, या वहां पे क्या सच्चे भक्त नहीं है, या है तो फिर जगन्नाथ की कृपा से जगन्नाथ पुरी में ही क्यों हुई, मतलब जैसे क्यों। हाँ, और अच्छा ना, तो ये अच्छा प्रश्न है प्रभु जी का। प्रभु जी का क्वेश्चन ये है कि जगन्नाथपुरी में ही क्यों भगवान जगन्नाथ जी ऐसे स्पेशल हैं, हर जगह ही तो भगवान है। इसका उत्तर ये है प्रभु जी कि भगवान जो है, जैसे हमारी इंडिया में जब कोई व्यक्ति आता है बाहर की कंट्री से, तो एम्बेसी में रुकता है। अमेरिका से कोई आएगा तो अमेरिकन एम्बेसी में रुकेगा, और कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया से आएगा ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में रुकेगा, फ्रांस से फ्रांस एम्बेसी में रुकेगा। क्यों एम्बेसी में रुकता है? क्योंकि वहां के रूल्स, वहां का थॉट प्रोसेस, वहां की रूपरेखा उसके अनुकूल होती है, उसके देश के अनुकूल होती है। इसीलिए एम्बेसडर्स स्टे इन एम्बेसी। ऐसे ही भगवान कृष्ण जब आते हैं तो उस पूरी पृथ्वी के ऊपर भारत देश उनकी एम्बेसी है। तो उसमें ये जो वनपुरी है, ये पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। ये कहाँ का हिस्सा है? गोलोक धाम का। जब प्रलय भी आती है ना, तो जेड़ा देश खत्म हो जाएगा, सारा कुछ खत्म हो जाएगा, भारत भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वृंदावन धाम, नवदीप धाम और जगन्नाथपुरी धाम, ये तीनों भक्ति धाम है। ये प्रलय काल में भी कभी समाप्त नहीं होती है, भगवान के धाम के हिस्से हैं। तो इसलिए उसकी महिमा बढ़ जाती है। अदरवाइज गॉड इज एवरीवेयर, बट इन पार्ट एंड पार्सल्स, नॉट इन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो जगन्नाथपुरी में भगवान अपने स्वधाम में, अपने निज धाम में है। जैसे जब कोई व्यक्ति जॉब करने जाता है, वो इंटरनेशनल कंट्री में होता है, बोलते हैं आप यहाँ पर हैं, बोले मैं 15 साल से 10 साल से हूं, बोले रहने वाले भारत के हैं, तो उसकी कनेक्टिविटी भारत से होती है। ऐसे ही भगवान कहीं पे भी जाएं जगन्नाथ,
और उनकी कनेक्टिविटी कहाँ से है? जगन्नाथपुरी धाम से है। वो उनकी प्राकट स्थली है, वो उनकी प्रेम स्थली है, वो उनकी क्रीड़ा स्थली है, वो उनका धाम है, निज धाम, जिसे वो अपने गोलोक धाम से लेकर इस पृथ्वी पर आते हैं, उनकी एम्बेसी है। तो एम्बेसी की कंपटीशन में एम्बेसडर तो सब जगह जाता है, दिल्ली में काम भी करेगा, बॉम्बे भी जाएगा, अफ्रीका भी जाएगा, पर रहेगा एम्बेसी के अंदर। तो भगवान जगन्नाथ कृपा करने के लिए सब जगह जाते हैं, परंतु उनका निज धाम श्री धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम। ठीक है प्रभु जी, हाँ बिल्कुल जी। हाँ, तो जैसे एक और लास्ट पे सवाल आता है, तो अगर तो देखें आपकी बात पे जैसे हमने कहा कि भाई जो पूरी है वो भगवान का एम्बेसडी है, तो फिर तो होना तो ये चाहिए कि इसको एक्सेस होना चाहिए सबके लिए। तो फिर आप मतलब जस्ट एक पॉलिटिकल रिप्लाई क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई फिर तो इंडियन गवर्नमेंट इसको इंडियन गवर्नमेंट तक की लोगों तक ही क्यों रख रही है? जैसे कि अब मक्का है इनका, तो मुस्लिम्स हाँ। ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो दुनिया भर में, उसका लेकिन हर कारण कोई क्या है कॉन्फ्लिक्ट प्रभु जी? उसमें पॉलिटिकल नहीं है। जो राजा को भगवान ने ये आदेश दिया है कि जिस दिन कोई बाहर का व्यक्ति आएगा ना, तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ करके चला जाऊंगा। जैसे मक्का में बोलते हैं, अगर कोई हिंदू ने जल डाल दिया ना, शिवलिंग है, तो फिर वहां से शिव जी चलेंगे, मक्का खत्म हो जाएगा। सिमिलरली जगन्नाथपुरी में भगवान ने मंदाल पंजिका में लिखा है कि अगर कोई भी एक व्यक्ति नॉन फॉरेन मतलब नॉन इंडियन बॉडी आ गया ना, अगर मेरे भक्त के अलावा, तो मैं ये जगन्नाथपुरी छोड़ के चला जाऊंगा। सो पंडाज ने बहुत ज्यादा प्रयास किया, इसीलिए प्रभुपाद जी जो थे इस्कॉन के, उन्होंने बोला अरे जगन्नाथ केवल उड़ीसा नाथ नहीं है, वो तो जगत के नाथ हैं। एंड ही स्टार्टेड जगन्नाथ यात्रा ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन उड़ीसा के लोगों ने आज भी हमारे ऊपर एक कोर्ट केस कर रखा है कि इस्कॉन वाले कहीं भी जगन्नाथ यात्रा निकालते हैं, दिस इज रॉन्ग। जगन्नाथ यात्रा केवल जगन्नाथपुरी धाम की ही है, और जगह नहीं होनी चाहिए। तो फिर हमने उस पे कंट्रोवर्शियल केसेस किए, तो फाइनल ये हुआ कि अभी जगन्नाथपुरी धाम में जगन्नाथ भगवान कृपा करने के लिए बाहर निकलते हैं। जो लोग अंदर नहीं जा सकते उन पर ही दर्शन देने के लिए भगवान आते हैं। लेकिन ये भगवान का और भगवान के भक्तों का है, इसमें हमें अपनी राय न देनी चाहिए, न सोचना विचार करना चाहिए इसके अंदर। भगवान और भगवान हमारे लिए तो जगन्नाथ हमारे घर में भी है, हमारे मंदिरों में भी है, लेकिन हम तो भारतीय, हम जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई नॉन हिंदू बॉडी है, तो कोई तो ऐसा मंदिर हो जहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो, पवित्रता हो। हर जगह हमने बुला कर क्या किया, बांग्लादेश में हमने मुस्लिम्स को बुलाया, एंड देन फाइनली मुस्लिम्स हैव बर्न्ड आवर टेम्पल्स। लेकिन एक मंदिर है जहां हम भी कह सकते हैं हाँ, यहाँ पर हमारा वर्चस्व चलता है, यहाँ पर सनातन धर्म को एकदम प्योर पवित्र रखा गया है। मुस्लिम लोग मक्का में हिंदुओं को नहीं आने देते, तो हमारा भी तो कोई ऐसा जड़ होना चाहिए जहां पर हम किसी भी ऐरे गैरे को ना आने दे, जो पवित्र ना हो उसको एंट्री ना हो। हम इस्कॉन के अंदर सबको वेलकम करते हैं, हमारा भाव ये है। पर जगन्नाथपुरी धाम है, धाम के अपने नियम होते हैं, और भगवान के नियम, भगवान के बनाए गए नियम है। सो वी आर नो वन to interfere in the rules created by God himself. Prabhuji, you are Hindu only, you can enter there. Don't worry. वीजा नहीं देंगे ना आप लोग, ये तो प्रॉब्लम। Visa political issue है। मैं उसी को कह रहा था, आप मन से इच्छा Visa, क्या आप मन से इच्छा की। उनको मन से इच्छा कर रहे हैं, आप तो वीजा नहीं दे रहे ना, हमारा क्या मसला Prabhu is from Pakistan and है? आप लोग वीजा दे नहीं रहे। so I So think we so. have- किसी के प्रश्न? We have few questions on Zoom ID. Prabhuji, can I take? Yes, Prabhu. तो हरि सेवनी मंगला माता जी। Vizag. हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचम प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छा लगा आपका लेक्चर सुन के, हम लोगों का भी कुछ शुद्धिकरण हुआ था। और मैं ये पूछना चाहती हूँ प्रभु जी कि हम जब स्नान यात्रा करवाते हैं मंदिर में, तो जो डिटीज होते हैं उनको झूला क्यों देते हैं प्रभु जी? आनंद के लिए या फिर और कुछ आनंद 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 के लिए बस, ऐसा कोई स्पेशल उसका वो रूल्स नहीं है। जस्ट जैसे Okay. भगवान को विजय जब दिलाते हैं, तो हम बच्चों को जैसे करते हैं ना, जन्मदिन के ऊपर उनको खिलाते हैं, तो बस झूला देना भगवान को हैप्पीनेस के लिए, प्लेजर के लिए। ओके। और एक और प्रभु जी पूछना था, जो अभी अपने भौतिक जगत में बहुत chaos चल रहा है, अभी जो रिसेंटली हुआ था हादसा बॉम्ब ब्लास्ट का, और अभी रिसेंटली कल ही जो हुआ फ्लाइट का, इसको या प्रभु जी लोगों को कैसे समझाए? कुछ भी होने से जल्दी से बोलेंगे कि भगवान कैसे करते हैं इतना जल्दी, मतलब कुछ भी हो तो भगवान पे थोपते, तो इसको हम लोग कैसे क्लैरिटी दे सकते हैं प्रभु जी? कैसे समझा सकते हैं उनको कि ऐसा नहीं होता है? कोई ऐसा अगर बोलते हैं। देखिए, ऐसा है कि कर्म के सिद्धांतों को लोग पढ़ते नहीं है ना, और शास्त्रों को मानते नहीं है।
So they think they are very smart, but Krishna is extra smart. So कर्म के सिद्धांत कहते हैं, एक होता है कलेक्टिव कर्म, सामूहिक कर्मों का फल। तो मैंने अभी से 2 महीने पहले एक लेक्चर दिया था, उसमें मैंने बोला था, उदाहरण स्वरूप में मान लीजिए इंडिया से लंदन कोई फ्लाइट जा रही है और उसमें 300 लोग सवार हैं, लेकिन वो लोग कौन है? प्रकृति लोगों को लेके आएगी जिन्होंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर्म ऐसे किए जिसे कलेक्टिव कर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉन वेजिटेरियन फूड खाना हो गया, किसी प्राणी को जलाना, किसी प्राणी को खाना। उस समय जब पकाया जाता है किसी मुर्गे को, बकरे को, तब व्यक्ति नहीं सोच सकता, तब वो अपने बहुत सारे जेन्युइन मेडिकल लॉजिकल थॉट्स लेके आता है। लेकिन प्रकृति के नियम इतने निष्ठुर है, इतने कहते हैं गहनो कर्मणा गति, भगवत गीता के 4थे चैप्टर में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, अगर सामूहिक कर्म कैसे होता है, कलेक्टिव कर्म का फल, जिसने जाली बनाई, जिसने मुर्गे को पकड़ा, जिसने चाकू बनाया, जिसने स्लैब बनाया, एवरीबॉडी इज कंसिडर्ड ऑन द सेम कर्मा रिजल्ट। सबको प्रकृति इकट्ठा लाएगी और सभी को, जैसे तुमने मुर्गे को फ्राई किया वो तुमको फ्राई करती है ना। तो हमें अपने कर्म करने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, भगवान ने प्रकृति को ये काम दिया है, तुम जो करोगे तुम्हें वैसा मिलेगा। अभी इससे पहले जयपुर में भी एक पूरा बस फायर में हो गया था। तो जो भी है, Yes. प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उसके पीछे केवल और केवल कर्म का सिद्धांत चलता है। इमोशनली हम भी दुखी होते हैं, हम भी उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन आत्माओं के लिए, लेकिन उन्होंने जो कर्म किया है उसका फल कोई ये नहीं कह सकता एक्सीडेंट हो गया। कृष्णा कहते हैं एवरीथिंग हैपेंस बाय द विल ऑफ गॉड, नथिंग हैपेंस बाय एक्सीडेंट, इट्स बाय डिसीजन। प्रकृति पूरा निर्णय लेती है कि किसने कितना कितना किया है। अगर किसी ने इंडिविजुअल कर्म किया है, किसी को अकेले परेशान किया है, तुमने किसी का मर्डर करके भाग गए हो, तो तुम्हें अकेले ही उसका दंड मिलेगा। लेकिन अगर पब्लिकली तुमने 10-50 लोगों ने मिलकर किसी एक जीव पर, निर्जीव पर तुमने दया ने दिखाकर उस पर निष्ठुर कार्य किए हैं, तो तुम्हें सब इकट्ठा करके प्रकृति इकट्ठा उसका फल देती है। तो ये सब चीजें होती हैं। नियमों को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को देखना चाहिए। मैंने एक लेक्चर दिया था, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ गलत क्यों होता है? आप पढ़िए कर्म का सिद्धांत, कैसे वो रोल प्ले करते हैं, उसमें बहुत ही बारीकी से हमने हर चीज का वर्णन किया। Okay, Prabhuji. Hare Krishna. Panchal Pranam, Prabhuji. ओके, केशव चंद्र प्रभु। केशव चंद्र, केशव चंद्र प्रभु अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी एक क्वेश्चन था मेरी। क्या जैसे साधना में ना मेरा तो रेस्टोरेंट्स पे जॉब है, तो साधना में कैसे करूं? तो साधना में थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे करने में कंटिन्यू। भगवत नाम का जप करने के लिए सुबह उठकर जप करिए, और जब रेस्टोरेंट में टाइम मिलता है तब भगवान की हरि कथा सुनिए। रात को घर आकर थोड़ा गीता भागवत पढ़िए और फिर सोइए। बट मेरा टाइमिंग थोड़ा सा इशू है, क्योंकि मैं 2 बजे ऑफिस एंटर करता हूँ, क्लोजिंग मेरी टाइमिंग है 1:30, अराउंड 2 अच्छा, o'clock। सुबह 2 बजे तक तो आपके पास समय है ना। थोड़ा नींद को कम करिए, 3-4 घंटे 5 घंटे सोइए बस। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। देव आशीष प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। जी प्रभु। प्रभु मेरा क्वेश्चन है प्रभु, जैसे कि हमें भगवत गीता में लिखा है कि जो कर्म हम करेंगे उस कर्म के हिसाब से हमें फल मिलेगा, और फल जो मिलेगा उसी हिसाब से हमें हो गया? अगला जन्म जो है वो मिलेगा। अब उसको तो भी कर प्रभु लेना। मेरा ये प्रश्न है, ये जो कर्म का फल जो है, अगर हम ये जो कोई डिवोशनल सर्विस करते हैं, कोई भी करते हैं काम, तो उससे हमारा कर्म का फल कम होते जा रहा है, और वो जो अगला जन्म हमारा है, ये कर्म जो हम अभी कर रहे हैं उस कर्म से हिसाब से तय होगा, या हमारा ये जो डिवोशनल सर्विस है उससे कुछ कम हो जाएगा? ये मेरा प्रश्न है प्रभु। डिवोशनल सर्विस करने से कम होता है, पाप भी कम होता है, पुण्य भी कम होता है। केवल हरि कृष्ण महामंत्र में ही एक ऐसी शक्ति है, केवल भक्ति के मार्ग में एक ऐसी, भक्ति के मार्ग में ऐसी शक्ति है जो पाप को भी खत्म करती है और पुण्य को भी खत्म करती है। तो आपको ना तो पाप का फल मिलेगा ना पुण्य का फल मिलेगा। लेकिन अगर डिवोशनल सर्विस करते वक्त भी हमारी आसक्ति संसार में लगी हुई है और हमने डिवोशनल सर्विस प्योर हार्ट से नहीं करी है, शुद्ध हृदय से नहीं करी है, तो उसका भी कर्म बंधन भोगना पड़ेगा।
शुभांगी माता जी। Hare Krishna Prabhuji, this is Divyangi here. Prabhuji, I जी have माता a question. I have a question in regards to the same incident which has happened recently. आज सुबह ही एक पोस्ट आया था कि जिस प्लेन का क्रैश हुआ है उस प्लेन में भगवत गीता मिली, हमारे प्रभुपाद की रिटन भगवत गीता अनटच्ड। तो उसके नीचे कमेंट्स आए थे, भगवत गीता के होने का क्या फायदा when Krishna couldn't save the people in the flight. So how do you counteract people like this who say that just because it had a देखिए, religious book, जब so why didn't he जब save? क्या हुआ, जब केदारनाथ में बाढ़ आई ना, तो मंदिर को कुछ नहीं हुआ, लोगों को हुआ। कौन से लोगों को हुआ? जिन लोगों ने केदारनाथ को हनीमून स्थली बना दिया था, भगवान के धाम को भी नहीं छोड़ा था, वहां जाकर ड्रिंक कर रहे थे, अल्कोहल पी रहे थे, मस्ती कर रहे थे, घूमने के लिए विंटर वेकेशन बना लिया, समर वेकेशन का स्थान बना लिया। ऐसे जो लोग भगवान को यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर देयर सेंसुअल प्लेजर्स, उनके लिए यही रिजल्ट होते हैं। और हम ये नहीं बोल सकते हैं कि भगवत गीता अगर प्राप्त हो गई है तो भगवान ने नहीं बचाया। भगवत गीता किसी ने दी होगी, लेकिन उस व्यक्ति ने उसका क्या किया? अभी कुछ दिन पहले मुझे भगवत गीता मैंने किसी को दी और मैं गया कहीं पर, लौट कर आया तो देखा भगवत गीता उसने डस्टबिन में डाल दी थी। अब भगवत गीता कहाँ मिली? किसी भी व्यक्ति के बैग में थी, वो डिवोटी था, या बैग में डाल दी थी या डस्टबिन में डाल दी थी। भगवत गीता तो नहीं जली ना, वो तो यथारूप मिल गई। लेकिन वो व्यक्ति ने जिसने उसका दुर्व्यवहार किया उसको तो दंड मिलना चाहिए ना। अगर वो भगवत गीता पढ़ लेता, अपने जीवन में उतारा होता, तो क्या पता उस एक व्यक्ति के कारण से बहुत लोगों की रक्षा हो सकती है। लेकिन प्रकृति ऐसा करती नहीं है, प्रकृति वहां भक्त को लाएगी नहीं, उसका कोई ना कोई कारण से उसका फ्लाइट छूट जाएगा, वो लेट हो जाएगा, और आएंगे ही वो लोग जिनका प्रकृति ने दंड निश्चित किया हुआ है। जब जन्म हुआ ना तभी हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है भाई, मैन्युफैक्चरिंग डेट पर ही एक्सपायरी डेट टच हो जाती है, तो ये बाद में क्रिएट नहीं होती है और कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज, एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय द नेचर। और ऐसा नहीं कि हमारे साथ नहीं हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, टाइम बहुत कम है, इसलिए वी शुड यूटिलाइज दिस टाइम फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। So everyone on the flight had the same karma except that one person who got saved throughout the whole incident. Maybe Okay. this is what karma plays, karma role says this, collective karma has to be pay back। जिसके भी collective कर्मा थे उन सबको जाना है। एक व्यक्ति को बचना था जिसको भगवान ने किसी कारण से छोड़ दिया है, ना उसके ऊपर चॉइस है हाउ यूटिलाइज द नेक्स्ट लाइफ, वो अपने आगे का जीवन कैसे इस्तेमाल करेगा। Hare Krishna Prabhuji, thank you so much. क्या जी? नहीं। ठीक है प्रभु जी, गणेश, प्रभु या प्रभु। हरे कृष्णा। यस हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु। प्रभु लाइक राधा माता जी आप आ सकते हैं सामने, कोई बात नहीं। प्रभु जी को एक बार धन्यवाद राधा देंगे। माता जी को धन्यवाद, प्रणाम माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, भक्तों से मिलाने के लिए। तुमने मंगा लो, आप शाम का तो इतना ले जाओ, इतना देते हुए अभी तुम्हारे पास वहाँ तो न्यूट्रिएंट्स है, केशव वहाँ है चंद्र पीछे। प्रभु को म्यूट। मेरे पास थोड़ी We are है, unable- मेरे घर थोड़ी ले जाऊंगा मैं, हरे कृष्णा प्रभु। आधा ले केशव जाए। चंद्र प्रभु, केशव चंद्र प्रभु, you can mute yourself। केशव चंद्र प्रभु को म्यूट कर दीजिए। जी जी जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल लेक्चर, और आपने अपना कीमती समय हम लोग को दिया प्रभु जी, थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप इतने बिजी रहते हैं, फिर भी आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए ये टाइम निकाला, उसके लिए प्रभु जी धन्यवाद। तो मतलब धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है। हरे कृष्णा, पंचंगा प्रणाम प्रभु जी, बहुत ही बहुत अच्छा बहुत धन्यवाद लेक्चर राधा दिया। कीर्ति माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बुलाया, और सभी भक्तों से प्रेममय गोपेश प्रभु का धन्यवाद, और सभी भक्तों का जिन्होंने मुझे सुना। अगर मैंने कोई कड़वे शब्द कहे हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। जो भी है वो शास्त्रिक उत्तर है, इसमें कुछ भी मेरा मनोभाव नहीं है। जो भागवत में, शास्त्रों में, जगन्नाथपुर स्कंद पुराण में लिखा है, मैं वही चर्चा करता हूँ, अपने मनोभावों को बीच में लाता नहीं। सो आई एम सॉरी इफ somebody got hurt because of my any words, and I thought कि आगे दोबारा हम मिलते रहेंगे सब। हरे कृष्णा। These are two like Shubhangi Shugopi and स्वामी श्री गोपी देवी दास जी है,
बहुत ही अच्छा लेक्चर था प्रभु। Thank you. और जगन्नाथ जी Thank का you, चल Mata. रहा है तो इसी मूड में जाना है हमको अभी 27 जी। तारीख तक ताकि बिल्कुल बिल्कुल। और हरे कृष्णा टीवी में मेरी मम्मी भी सुनते रहती है, बहुत अच्छा लगता है आपका लेक्चर, वो बोलते रहती है। मैं उनको भेजी तो हूँ, वो पता नहीं ज्वाइन करे नहीं करे, देखती हूँ। ये जो शुभांगी के नाम से जो ज्वाइन करी हुई है वो मेरी डॉटर है प्रभु जी, इसीलिए वो वहां अच्छा से जो अच्छा, ओ अच्छा, थैंक यू। दिव्यांगी एक्चुअली। ओके दिव्यांगी, ओके ओके। प्रभु जी हम लोग सोच रहे हैं कि आप जैसा विजिट करिए एक बार, आपके पास अगर टाइम हो तो प्लीज आप यहाँ आइए और हम सब लोगों को कृतार्थ कीजिए। हम लोग पर्सनली आपको इनवाइट करना चाहते हैं, तो तो जब भी प्लीज आप आपके प्लान पास करिए, वॉट एवर वेज जैसे भी आना होगा, कैसे आना होता है। तो अभी तो दिस ईयर, लास्ट ईयर ऑल्सो आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, दिस ईयर ऑल्सो आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग बताइएगा जैसे भी आना होगा, कितने दिन के लिए, तो कुछ 3 दिन की कथा कुछ प्लान करेंगे उधर, तो मैं अवश्य आऊंगा फिर उधर। थैंक अरे यू सो और मच। सभी हमारे कांग्रेगेशन को सभी को आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी, ताकि हम भक्ति में मेरी आगे बढ़ प्रार्थना है सकें। सब लोग शिला प्रभुपाद जी की सेवा में लगे रहें, बड़े मनोभाव से, सारे बड़े सुंदर भक्त हैं, ऐसे ही लगे रहें, सेवा करते रहें जगन्नाथ जी की। और प्रेममय गोपेश प्रभु हैं, राधा कीर्ति माता जी हैं, सब लोगों के संरक्षण में सब बड़े होते रहे। हरे कृष्णा। तो एक बार प्रभु के लिए एक बार श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। श्री श्री गौर निताय जो कि सच्चिदानंद प्रेमानंद निताय यहाँ पे डीटीज विराजमान है, और रिसेंटली हमने लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान को भी इंस्टॉल किया है। तो 2 deities here, and Jagannath, Baldev, Subhadra Maharani are at Radha Kirti Mataji's place. So they were here during the Snan Yatra and then now at their place. तो 15 दिन बाद हम सीधा, और इसमें नीलेश प्रभु हैज आल्सो जॉइंड, उनके यहाँ से भी जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी है। तो एक्चुअली everybody is having some kind of this thing and everybody is progressing spiritually, with somebody doing 1 round, somebody doing up to 16 rounds. तो काफी लोग भक्त जो इंडिया गए वो लोग वहां से भी ज्वाइन किए हैं। तो हरे कृष्णा, सभी को ब्लेसिंग दीजिए प्रभु। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच थैंक यू प्रभु। एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय। जगन्नाथ यात्रा की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।